Good morning, dear students. Hope that you will be well. I hope that at home you will be studying very well, properly. Dear students, study is power. You will get the knowledge when you will get study, and knowledge is power. And as you know, if you have the power, that everyone will come to you. As Swami Vivekananda has said, that weakness is the death. So, dear students, you have the good time. It is a golden time for you. You can study properly. Because this time you are free and your parents, the teachers, are dedicated to you for the next and the further study. You should take interest. My dear 11th standard students, today we are going the next lesson, and it is very good lesson, instructed lesson, and give a good education. Dear students, that's discovering truth. The saga continues. That's the name of this lesson. This is the third lesson, and this lesson is written by A.R. Williams. He was a great person, and he lives in Virginia. That's a colored people. He was that you can say that is a Negro. He was a Negro. That's so he's telling about the age factor. That's what is that about the teenager. He's telling us about how a people can survive. How can he do the work? And in this lesson, dear students, here is a story about a ruler. He was a young ruler, so he's telling about this. Now we start the second lesson. Second paragraph. We start the second paragraph. An angry wind stirred up ghastly dust devils as king. Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. Dark village clouds had scoured across the desert sky all day and now were wheeling the stars in cascade grey. It was 6 p.m. on 5 January 2005. The world's most famous mummy glided headfirst into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3300 ago. Dear students, जैसे कि मैं बता चुका हूं कि यहाँ पर एक रूलर है, एक शासक हैं, किशोर थे और उनकी मृत्यु हो गई थी और वो एक बहुत शक्तिशाली परिवार से संबंध रखते थे जिसने मिस्र और उसके साम्राज्य पर सदियों तक शासन किया था। वो उनका अंतिम उत्तराधिकारी था और उसको दफना दिया गया था। आखिरकार भूल भी गए थे लोग, लेकिन क्या हुआ प्यारे बच्चों, 1922 ईस्वी में जो उसका मकबरा था, क्या था प्यारे बच्चे, मकबरे, टॉम, क्या बोलते उसको इंग्लिश में, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, टॉम, TOMB। तो उसकी खोज की गई और आधुनिक विश्व उसकी मौत के कारणों का अनुमान लगाता रहा कि भाई कैसे हुई, किस तरह से हुई। तो बड़ी चर्चाएं थी, लेकिन 80 सालों में पहली बार क्या हुआ कि मकबरे से दूर टूट को एक CT स्कैन से गुजारा गया, यानी कि एक CT स्कैन था, उससे ये मालूम होता था कि इसकी मृत्यु कैसे हुई, कब हुई, क्यों हुई। जैसे आजकल पोस्टमार्टम होता है तो डॉक्टर बता देते हैं इसकी मृत्यु कैसे हुई, इसने सुसाइड किया है, क्या किया है। तो इसी तरह से ये लेसन भी प्यारे बच्चों, ये जो हमारे राइटर हैं
A.R. विलियम्स ये हमें जानकारी दे रहे हैं प्यारे बच्चों। तो इसी कड़ी में हम आगे हमने एक पैराग्राफ शुरू किया है प्यारे बच्चों, इसको आप ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। An angry wind stirred up ghostly dust devils as king. जब राजा टूट को उनके दफनाने के स्थान an angry wind stirred up ghastly dust devils as kings. Tut was taken from the resting place on the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. तो क्या है इसका अर्थ प्यारे बच्चों? जब राजा टूट को उनके दफनाने के स्थान जो मिस्र के प्राचीन कब्रिस्तान द वैली ऑफ द किंग्स, ये दैट शुड बी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द वैली ऑफ द किंग्स, द वैली ऑफ द किंग्स, यहां पर उनको लेकर अंतिम संस्कार किया गया था। जो मिस्र के प्राचीन कब्रिस्तान थे, ये उनका नाम क्या था? द वैली ऑफ द किंग्स, अर्थात राजाओं की घाटी में स्थित है। से ले जाया गया, वहां से उसको ले जाया गया कास्टली से। एक क्रुद्ध हवा ने भूतः धूल के दानव उड़ा दिए। यानी कि क्या हुआ कि एक बहुत तेज आई, एक एंग्री विंड स्टिर्ड अप घोस्टली, घोस्टली डस्ट, मतलब एक इस तरह की तूफान आया जैसे उस तूफान में कोई भूत हो, कोई भूत प्रेत हो, और उसको हिला दिया वहां पर। जैसे ही मतलब उसको निकालने का प्रयास किया गया तो इस तरह से लगा कि जैसे कोई आत्मा, प्रेत आत्मा निकल कर आई और उड़ा कर ले गई, ऐसा वहां पर महसूस हुआ प्यारे बच्चों। जो भूतल थी, यानी कि जो धूल के दानव, यानी कि जो उसके अंदर दानव था, जो भी उसमें था भूत प्रेत, वो उसको उड़ा कर ले गई, यही इसका अर्थ है प्यारे। एन एंग्री विंड स्टिर्ड अप घोस्टली डस्ट डेविल, डेविल्स का मतलब होता है जैसे दानव है, भूत प्रेत बड़े बड़े इस तरह। एज किंग्स टूट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, उसको जो रेस्टिंग प्लेस था उससे वहां से निकाला गया। इन द एंशियंट इजिप्टियन सिमेंट्री नॉन, सिमेंट्री यहाँ पर जहाँ पर दफनाया जाता है उनको, कब्रिस्तान है ना, उसे सिमेंट्री के नाम से इसे जाना जाता है। उसको हम क्या कहते थे प्यारे बच्चों? ए द वैली ऑफ द किंग्स। तो ये इस तरह की बात यहाँ पर कहा गई है। डार्क बिलियर्ड क्लाउड्स हैड स्कूडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन द कैस्केट ग्रे। तो इसमें क्या हुआ? दिन भर निर्जन आसमान में काले घने बादलों का शीघ्रता से आना जाना रहा था। दिन भर, यानी कि दिन भर निर्जन आसमान, आसमान निर्जन था, वहां पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो जो काले घने बादलों का शीघ्रता से आना जाना लग रहा था, शीघ्रता से आना जाना लग रहा था, यानी कि कभी बादल कैसे आते, कभी ऐसे आते, और अब वे तारों को इस तरह छिपा रहे थे जैसे किसी प्राचीन रत्न पेटी में आभूषण छिपे रहते हैं। किसी प्राचीन रत्न पेटी में आभूषण छिपे रहते हैं। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, क्या कह रहे हैं हमारे ऑथर? डार्क बिलिड क्लाउड्स, यानी कि बहुत कैसे बादल थे? डार्क घने बादल, कैसे थे? काले और फूले हुए, शलन बड़े बड़े हैं, ऐसे आ रहे हैं बादल, आ रहे हैं जा रहे हैं। तो उसे कहते हैं डार्क बिलिड क्लाउड्स हैड स्कूडेड अक्रॉस, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ रहे हैं और जा रहे हैं। स्कूडेड का मतलब होता है प्यारे बच्चों तेजी से आना जाना बादलों का। आपने देखा होगा ना, जब वर्षा होती है तो बादल बहुत तेज गति से जाते हैं, काले काले बादल, उनका आना जाना लगा रहता है प्यारे बच्चों। हैड स्कूडेड अक्रॉस का मतलब अभी हमने बताया आपको क्या होता है इसका मतलब प्यारे बच्चों, तेजी से दौड़ते हुए। द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर व्हीलिंग द स्टार्स इन द कैस्केट ग्रे। ऐसा लग रहा है था कि ऊपर आसमान में बादल ऐसे जा रहे हैं और तारों को छिपा रहे हैं। जब उधर जा रहे हैं तो कुछ तारे
दिखाई दे रहे हैं, फिर बादल आगे बढ़ रहा है, फिर वो तारे दिखाई दे रहे हैं। तो ये ऐसा महसूस हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है प्यारे बच्चों? ऐसा महसूस हो रहा है जैसे किसी प्राचीन रत्न पेटी में, किसी प्राचीन यानी कि पुरानी रत्न पेटी है, उसमें रत्न भरे हुए हैं, में आभूषण छिपे रहते हैं। यानी कि ऐसा लग रहा है ऊपर कि ये बादल ऐसे जा रहे हैं कि जैसे किसी रत्न पेटी में, रत्नों की पेटी में उसमें आभूषण छिपे हुए हैं, ऐसे महसूस हो रहा था। वेलिंग द स्टार्स इन द कैस्केट ग्रे। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसा है, आप इसको समझ रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा आपका। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005। यह 5 जनवरी 2005 की बात थी और शाम के 6 बजे थे। क्या था प्यारे बच्चों? शाम के 6 बजे। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005। शाम के 6 बजे थे और 5 जनवरी 2005 की बात है। The world's most famous mummy glided head first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3300 years ago. 3,300 years ago. 3,300 ago, यानी कि 3300 साल से भी अधिक समय की बात बता रहे हैं। यहां पर ये क्या कह रहे हैं कि विश्व की सबसे विख्यात मम्मी, जिसका पहली बार एक CT स्कैनर से परीक्षण किया गया, को इस तरुण शासक था जिसकी मृत्यु 3,300 सालों से भी अधिक समय पहले हो गई। 3,300 सालों से भी अधिक पहले हो गई, और जिसके बारे में काफी कम जानकारी उपलब्ध है कि लंबे समय से चले आ रहे चिकित्सकीय रहस्यों की, यानी कि जो मेडिकल मिस्ट्रीज हैं, कि जांच पड़ताल के लिए यहां लाया गया था। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी, यानी कि मम्मी क्या होती है प्यारे बच्चों? आप सामाजिक विज्ञान में भी पढ़ते हैं कि जैसे कोई चीज़ है, वो लोगों की डेड बॉडी पड़ी हुई हैं, बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, तो जब उसको निकालते हैं तो उसको मम्मी होती है, उसे मम्मी कहते हैं। जैसे डेड बॉडी थी, उसको बहुत दिनों के बाद वहाँ से निकाला गया, तो ये क्या है? मम्मी थी। उसे मम्मी बोलते हैं। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू ए CT स्कैनर ब्राउट हियर टू प्रूव। उसको निकाला गया, CT स्कैन से देखना चाहते थे कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, क्यों हुई, इतने साल पहले, 3300 ईयर्स एगो की बात यहाँ पर बता रहे हैं हमें। द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ दिस लिटिल। मिस्ट्रीज का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? मिस्ट्रीज होता है, रहस्य की बात होती है। मिस्ट्रीज ऑफ द लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर। एक यंग रूलर था, बहुत समझदार व्यक्ति था, बहुत ही अच्छा राजा था। हु डाइड मोर देन, और जिसकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर ये आपकी समझ में आया होगा प्यारे बच्चों, आशा है आपने इसको ध्यान से सुना होगा। लिसन केयरफुली, ट्राई अगेन एंड अगेन, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट माई डियर, बट बी कंटिन्यू, बी कंसंट्रेट एंड be revised again and again. Your course, definitely you will get good marks and you will get good knowledge, dear students. You should never forget that practice makes the man perfect. Thank you very much, my dear students. Be happy. Have a nice day.